مسیحی زندگی کی بنیادیں جو ہے وہ کیا ہے؟ جب کوئی بنیاد کو چھوڑتا ہے تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسیح کے پاس آتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بپتسمہ پاتا ہے، اور اس کے لوٹ جانے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ برگشتہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ لوٹ جاتا ہے؟ دنیا میں اس کا دل کیوں پھر سے واپس جانے کو کرتا ہے؟ تو ان باتوں پر غور کریں گے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم مسیح میں قائم رہیں اور مسیح میں بڑھتے رہیں۔ آمین۔ سو میرے ساتھ کھولیے اعمال کی کتاب دوسرا باب 38ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلام کو سنا اور جن کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ رسولوں سے کہنے لگے کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ توبہ کر لی، بپتسمہ پا لیا، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اندر کوئی ڈیوائس فٹ ہو جاتی ہے بپتسمہ لینے والوں کے اندر، کہ جب انہوں نے بپتسمہ لے لیا تو کوئی ڈیوائس ان کے اندر فٹ ہوگی جو آٹو پر چلتے رہیں گے، اب وہ گناہ نہیں کریں گے، اب وہ لوٹیں گے نہیں، اب وہ ٹک 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 وہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ یہ سمجھا جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بپتسمہ پا کر کیوں کوئی لوٹتا ہے؟ مسیح کے پاس آ کر کیوں کوئی برگشتہ ہوتا ہے؟ تو آگے جنہوں نے بپتسمہ لیا 3000 لوگ، یہ عید پینتیکوست کے روز جنہوں نے بپتسمہ پایا ہے، یہ یہاں سے کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کلیسیا گھٹتی نہیں بلکہ ہر روز یہ کلیسیا بڑھتی جاتی تھی۔ تو ہم ان بنیادوں پر غور کریں گے، وہ کون سی بنیاد ہے جس پر قائم رہ کر یہ کلیسیا بڑھتی گئی ہے، قائم ہوتی گئی ہے، اور 120 کی جماعت سے لے کر 3000 اور پھر کئی ہزار اور بڑھتے بڑھتے ساری دنیا میں آج سب سے بڑا وزن جو ہے وہ مسیحیت ہے۔ یہ کیسے بڑھ گئی؟ یہ کیسے پھیلتی گئی؟ یہ ان باتوں پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ آگے 41ویں آیت، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ میں 39 آیت مس کی ہے، میں وہ بھی ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آیت نمبر 40، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی۔ کنہیں نصیحت کی؟ جی بھائی، کنہیں نصیحت کی ہے؟ جو بپتسمہ پا رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، اور جو خداوند کے پاس آ رہے ہیں، انہیں اور بہت ساری باتیں جتا جتا کر نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قائم رہنے کا طریقہ یہی ہے۔ بپتسمہ پا لینا اور توبہ کر لینا، یہاں تک ٹھہرے نہیں رہنا، یہ برگشتگی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی ان باتوں پر عمل کرے گا وہ برگشتہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑھتا رہے گا، اور جب تک زمین پر رہے گا خداوند میں جیے گا، خداوند میں مرے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور آخر کار ان کے لیے یہ لکھا ہے وہ سب کے سب ایمان کی حالت میں مرے۔ جو ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر جب موت بھی آ جاتی ہے تو وہ ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ 40 آیت پڑھ رہے ہیں، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے کیا کرو، یا ناطے جوڑ کے رکھو۔
ताने बाने लगा के रखो। क्या कह रहे जी, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ जो तालीम को बिगाड़ते हैं, जो आपको ईमान से बरगश्ता करते हैं, जो आपको पढ़ने की राह में रुकावट है। अपने आप को इस टेढ़ी कौम से, अपने आप को ऐसे रिश्तेदारों से। अब्राहम से खुदा ने क्या कहा था? मैं तुझे बरकत दूंगा। 7 बरकतों का जिक्र किया गया है पैदाइश की किताब में, लेकिन उससे पहले खुदा ने कहा कि क्या कर तू अपने बाप के घर को, अपने नातेदारों को, और तीसरा इस मुल्क को भी छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। तो हम इस जमीन पर क्या है कि हम सबों को याद रहना चाहिए कि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरता है, फिर चढ़ जाता है, उसे पता है मेरी मंजिल नहीं है। जहां पर उसकी मंजिल है वहां पर ही वो उतरता है। तो हमारी मंजिल ये जमीन नहीं है, हमारी मंजिल वो जगह है जिसके लिए खुदावंद ने कहा मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूं। तो जमीन पर ही अपने घरों की तामीर नहीं करते रहना। जब तक है बनाना है ठीक है, लेकिन दिल ना दुनिया में लग जाए। हमारा दिल आसमान की तरफ लगा रहे जहां से हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आने वाला है। सो आगे बढ़ेंगे जी। आयत नंबर 42 पर आ जाइए। और ये रसूलों से, आप मेरे साथ रहने, जिन जिनके पास बाइबल है मेरे साथ रहिएगा जी। आयत नंबर 42 से पढ़ेंगे। और ये कौन है? मैं साथ साथ इसलिए तशरीह कर देता हूं ताकि हमें ये याद रहे ये जो है ये वो है जिन्होंने बपतिस्मा पाया, जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है। सो और ये रसूलों से तालीम पाने, ये मेरे साथ नंबर काउंट करने आपने। तो इन बातों पर हम गौर करेंगे, ये जो बुनियाद है। सबसे पहला जी, और ये रसूलों से, सबके बाद नहीं, और ये रसूलों से, ऊपर वाले भी, और ये रसूलों से तालीम पाने। नंबर 2 पर क्या है जी? रफाकत रखने में। नंबर 3 पर रोटी तोड़ने, और चौथा है दुआ करने में मशगूल रहे। जब इनमें से कोई, इन बुनियादों में से कोई किसी बात को छोड़ता है, तो मैंने अपने मैसेज का आगाज किया कामयाब जिंदगी, मसीही जिंदगी की बुनियाद क्या है। जब कोई इनमें से किसी भी चीज को छोड़ता है तो उसके लिए खतरा मौजूद है कि वो लौट सकता है, वो गुमराह हो सकता है, वो बरगश्ता हो सकता है। यही सबब है जाना जी, बपतिस्मा पाकर जब कोई इन बातों पर अमल नहीं करता और वो तालीम पाने में और दुआ करने में और वक़्त रखने और रोटी तोड़ने में नाकाम रहता है। रोटी तोड़ने से मुराद शैलवानी है। जब इसमें कोई नाकाम रहता है, वो शरीक नहीं होता, बात जानबूझकर फैसला नहीं कर पा रहे होते, अंदर से दिल अभी थोड़ा सा खैर है, हम नहीं जानते कि किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाए या किस वक्त हमारा खुदावंद आ जाए। इसलिए हमें इन बातों पर अमल पैदा होना है। इन बातों को, इन बुनियादों पर चलकर ही हम कामयाब मसीही जिंदगी बसर कर सकते हैं। आमीन। सो पहली पर गौर करते हैं। पहली क्या है? और ये रसूलों से तालीम पाना, ये बड़ा जरूरी है। ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान बोले ये तो आज आपको आती है ना, इसलिए आप बोले। आप ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और खुदावंद ने कलाम सुनने वालों को, रसूलों ने ये तालीम दी है, खुदावंद ने ये तालीम दी है, और खुदावंद ने ऐसे लोगों को एप्रिशिएट किया है, उनके साथ अपना रिश्ता जाहिर किया है। और हम ये चंद एक हवाला जब पढ़ेंगे, मैं सब खोलिए लूका रसूल की इंजील और 10वां बाब आयत नंबर 38 से पढ़ेंगे। सब जल्दी से बोले। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के
पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। ये वाकयात, ये हवाला जात हमने कई दफा पढ़े हैं। आज एक डिफरेंट एंगल से इनकी दोहराई कर रहे हैं इस राय में कि वो तालीम पाना कितना जरूरी है, और खुदावंद ने भी अप्रिशिएट किया है। खुदावंद हौसला अफजाई करता है कलाम सुनने और उस पर अमल करने वालों के लिए, जो तलाश करते हैं अपने लिए, जो सुजू करते हैं। और यहाँ पर ये हुआ कि मर्था जो है, मर्था नाम एक औरत का जिक्र है जिसने खुदावंद को अपने घर में उतारा, यानी अपने घर में बुलाया, अपने घर में बुलाया, खुदावंद की दावत की कि हमारे घर में भी आइए। और ये अक्सर लोगों का होता है कि खादम हमारे घरों पे आए, ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी बात क्या है उसे समझना और जानना बड़ा जरूरी है। इसने भी खुदावंद को अपने घर में बुलाया, दावत दी, और घर बुलाकर ये खुद किचन में और जाकर खाने पकाने का इंतजाम जो है वो करने लगी। लेकिन इसकी जो दूसरी रहन है उसके बारे में लिखा है कि वो यीशु के कदमों के पास बैठकर क्या सुन रही थी, क्या सुन रही थी। और मर्था कहां पर है जी, और किसके लिए कर रही है, यीशु के लिए, खुदावंद ही के लिए वो तैयार कर रही है कि खुदावंद हमारे घर में आए हैं तो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा खाना पीना हो जाए। किचन में बुलाकर और खुद किचन में, और मरियम यीशु के कदमों के पास बैठकर कलाम सुन रही है। मर्था आई तो शिकवा करने की, खुदावंद इन्हें कोई ख्याल नहीं मेरा, इसे क्या है, इसने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। खुदावंद को बुला के आप ही सारे किचन, खुदावंद भी तैयार हो रहा है और मरियम कलाम सुन रही थी। और मर्था ने जब ये शिकवा किया तो खुदावंद ने क्या कहा, ये इस बात पर हम तवज्जो देंगे जी। 40 में आए, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। यदि धोखा करते थे खुदावंद के, मरियम एक चंगी गल नहीं ना, जा अपनी बहन ना जाके काम करा, वो खाना वाला बना रही है तो तू मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है कि वो देखो कितनी चाहत से बना रही है। लेकिन खुदावंद ने उसकी तोका से हटकर कुछ जवाब दिया। वो चाह रही थी, खुदावंद मरियम ने कहा, मरियम अच्छी गल नहीं, जा और जाकर किचन में खाना बना उसके साथ। हाँ, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। 41 में आए, खुदावंद ने जवाब में उसे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है। और मरियम ने वो, आगे आप बोलेंगे, और मरियम ने वो सब बोलिए, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। मर्था, तू तो दुनिया की फिक्र तरद्दुद में लगी पड़ी है। याद रख, मरियम ने अपने लिए वो अच्छा सा चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। बहुत सी बातें हैं, इन चारों बातों पर गौर करना है, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत से रेफरेंसेस हैं जो बयान किए जा सकते हैं। अय्यूब नबी की जिंदगी का रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। लिखा है कि उस कलाम में लिखा है कि वो कहता है, मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का ज़ख़ीरा किया है। अपने गुलामों में माल नहीं भरा, अनाज नहीं भरा, वो अपने खत्ते में, अपने गुलामों में क्या ज़ख़ीरा कर रहा है। कहता है, मैंने जरूरी खुराक से भी ज्यादा मैंने तेरे मुंह की बातों, तेरे कलाम का ज़ख़ीरा किया है। क्या ज़ख़ीरा करते रहते हैं सारा दिन? क्या आपके मोबाइल में चलता है? क्या आपके ज़हन में ड्रामे याद हैं, बहुत लतीफे याद हैं? क्या किन बातों का ज़ख़ीरा करते हैं? वो जो ईमान को खराब करती है, या वो कलाम आपके अंदर ज़ख़ीरा है जो कमजोरी में हमारी मदद करता है? अगर कोई गिर रहा हो तो ये कलाम है जो गिरे हुओं को उठाता है, और ये ज़ख़ीरा है। अय्यूब पर छोटी मुसीबत आई थी, बोले
भाई ऊपर छोटी मुसीबत आई थी ना, उससे पहले और ना उसके बाद कभी सुनी है कि ऐसी बड़ी मुसीबत, सब कुछ जाता रहा, कुछ भी नहीं रहा, औलाद भी जाती रही, आकर खुद भी एक ठीक तरह से अपने जख्मों को जो है वो, क्योंकि खारिश के सबब से तकलीफ में था, मुब्तला था तकलीफ में, लेकिन कैसे कायम रह गया। पहले से ज्यादा बरकत खुदा ने उसे बाद में दी है, औलाद भी दी है, दौलत भी दी है, अगर 1000 बैल है 2000 खुदा ने लौटाए हैं, पर कैसे कायम कैसे रहा जी। कोई ना साथी भी आकर कहने लब भाई तेरे को खराबी जरूर है, तेरे को प्रॉब्लम है, बीवी भी उसे कह रही है और वो अकेला है, लेकिन अकेले को संभालने वाला कौन है? बोलिए जी, किसने संभाला है? खुदा के कलाम ने। जहां कोई आपका रिश्तेदार साडा को पता करने नहीं आया, साडा को पूछने नहीं आया, और ये मैं आगे चलकर बयान करूंगा, ये पूछना, ये तीमारदारी करना, ये कलाम में है, लेकिन मैं यहाँ बात करूं कि अगर ऐसी कभी किसी की सोच आ जाए, इस सोच से बाहर आना है, हमें कलाम संभालता है। हालेलुया। और खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को मानने में जल्दी की और देर ना की। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब कलाम को मानने में लोग देर करते हैं तो फिर हम खुद अपने आप को बरकतों से दूर रखते हैं जो हमारा खुदा हमें देना चाहता है। नेक्स्ट दूसरा वाला पढ़ेंगे, और ये भी लूका रसूल की इंजील में ही है, और तो 8वां बाब 19 में आए। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। बाहर मां खड़ी है, बाहर भाई खड़े हैं। याद रहे ये बाइबल में लिखा हुआ है, और ये मुकद्दस यूसुफ थे, यूसुफ से और मुकद्दसा मरियम से ये जिन भाइयों की बात हो रही है, तो उससे औलाद है। ऐसा नहीं है कि जैसा आपके इर्द गिर्द तालीमों में और आजकल बड़ा जोर चल रहा है इन बातों के ऊपर, तो ये आपको याद रहे कि ये यीशु मसीह की माँ मरियम की बात हो रही है, और जो साथ आए हैं ये चाचे के बेटे नहीं आए, ये मुकद्दस यूसुफ से जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, ये वो भाई हैं। ठीक है, तो ये जब मिलने के लिए आते हैं तो भीड़ बहुत है और आगे नहीं जा पाते, तो मैसेज भेजा गया कि जी बाहर आपके मिलने वाले आए हैं, आपके भाई हैं, आपकी माँ है और आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए कि खुदावंद किस तरह से सिखाता है, खुदावंद किस तरह से हमें हमारी सोच को किस तरह से बदलता है। उन्होंने कहा अच्छा, अब खुदावंद ने क्या कहना शुरू किया, आए पढ़ते हैं आयत नंबर 20। और उसे खबर दी गई कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। सुनिए, उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी मां और मेरे भाई तो आगे आप बोलिए, ये हैं कौन? जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जिस्मानी रिश्तों से ज्यादा खुदावंद रूहानी रिश्तों को तरजीह देता है। कौन है मसीह का भाई जी? बोलिए हालेलुया। कौन है मसीह का भाई? तो सुनते हैं, तलाश करते हैं, टाइम भी होता है, लेकिन और कामों में जब करेंगे तो ये पहली बुनियाद, यहीं से हम फ्लॉप हो जाते हैं। जब कलाम की जुस्तजू हमारे अंदर से खत्म हो जाती है, हम तलाश नहीं करते हैं, तो फिर नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि जो ईमान की बुनियाद है वो कलाम ही है, और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए खुदावंद ने कहा मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनें ये हैं जो खुदा के कलाम को प्यार करते हैं, जो खुदा के कलाम की तलाश करते हैं, जो कलाम को तरजीह देते हैं, जो अव्वल दर्जा कलाम को देते हैं। ये मेरी माँ और ये मेरे भाई हैं जो खुदा का कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं। सो इस पर में इतना ही। पहली बात क्या है जी? ये रसूलों से, बोलिए रसूलों से
تعلیم پانے میں. تو اگر کوئی مسیح کو قبول کرے اور بیپتسمہ بھی پائے تو بھرگشتی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ تعلیم پانے میں ناکام ہو جاتا ہے. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. آپ کو جاب کرتے ہیں تو کوئی گھر سے لینے نہیں، ہم خود جاتے ہیں نا، ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو سب سے بڑھ کر ہماری جو ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور اس کے لیے ہم کتنی تلاش کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں. پہلی بات کیا ہے جی؟ رسولوں سے تعلیم پانے کی. اور دوسری بات، چلیں آپ دوسری طرف بڑھتے ہیں جی.